Hey guys, my name is Ujjwal and today we are back with another video on physiology. ठीक है, today's the topic is erythropoiesis. ठीक है, देख erythropoiesis को समझने से पहले we have to understand कि hematopoiesis क्या है. ठीक है, what is hematopoiesis? देख, hematopoiesis is a process. Basically, it is the process of origin, then development, then maturation of all the blood cells, है ना, of all the blood cells. For example, erythrocytes, है ना, मतलब RBCs, basophils, neutrophils, platelets, eosinophils, monocytes, etc. Okay, तो basically hematopoiesis क्या है? It is the process of origin, development and maturation of all the blood cells. Okay, all the blood cells. देख, now we can understand कि basically erythropoiesis क्या होगा. erythropoiesis क्या होगा? It will be obviously the origin, development, maturation of the red blood cells only, है ना. It will be about erythropoiesis. ठीक है, we know erythropoiesis is now origin, development and maturation of erythrocytes or red blood cells. Okay, so now let's move on to the site of erythropoiesis. ठीक है, बेसिकली erythropoiesis होता कहाँ पे है. Okay, देख, let's start from the beginning. During the third week of intrauterine life, ठीक है, during third week of intrauterine life, the erythropoiesis start in the mesenchyme of the fetus, है ना. ये हमारा fetus है, ठीक है, इसके mesenchyme से, इसके mesenchyme में our erythropoiesis starts. Okay, then during the third month, ठीक है, during the third month some stem cells, ठीक है, बेसिकली स्टेम सेल्स क्या होते हैं? द सेल्स विच कैन गिव राइज टू एनी अदर सेल्स, है ना. देख, अब जो ये स्टेम सेल्स है, फ्रॉम द यॉर्क सैक दे माइग्रेट टू लिवर, है ना. दे माइग्रेट टू आवर लिवर फ्रॉम द यॉर्क सैक. कौन से महीने में? थर्ड मंथ, ड्यूरिंग द थर्ड मंथ. और देन लिवर में दे स्टार्ट आवर erythropoiesis, है ना. ओके, देख, थर्ड मंथ में दे द स्टेम सेल्स फ्रॉम द यॉर्क सैक माइग्रेट टू लिवर एंड देयर दे स्टार्ट फॉर्मिंग erythrocytes. ठीक है, देन ड्यूरिंग द फोर्थ मंथ, ठीक है, अब फोर्थ मंथ में क्या होता है? ठीक है, fourth month the stem cells from the liver then start migrating to the bone marrow. ठीक है, bone marrow of long and flat bones. ठीक है, and there they start erythropoiesis. यहाँ पे रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है. Now आफ्टर फोर्थ मंथ, ठीक है, अप टू प्यूबर्टी, ठीक है, अप टू प्यूबर्टी, मतलब फोर्थ मंथ अप टू प्यूबर्टी, इट मीन्स 18 to 19 years ऑफ योर एज. erythropoiesis कहाँ पे हो रहा होता है? बोन मैरो ऑफ लॉन्ग एंड फ्लैट बोन. ओके, but after puberty it means at the age of 19 years plus the erythropoiesis start at the axial skeletons, है ना, at the bone marrow of axial skeleton. ओके, ठीक है. अब एक्सियल स्केलेटन बेसिकली क्या है? स्कल, रिब, हिप्स,
मेम्ब्रेनस बोन ऑफ वर्टेब्रा, स्टर्नम, रिब्स, स्कैपुला, इलियक बोन्स, है ना, एंड द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स. ठीक है, ये अपन को समझ आया. ठीक है, अप टू प्यूबर्टी कहाँ पे हो रहा था? बोन मैरो ऑफ लॉन्ग एंड फ्लैट बोन. प्यूबर्टी के बाद कहाँ से हो रहा है? बोन मैरो ऑफ एक्सियल स्केलेटन. ओके, सो देख, दिस वॉज आवर बेसिकली द साइट ऑफ इराइथ्रोपोएसिस, जिसे अपन ने कुछ स्टेजेस में डिवाइड किया. सबसे पहला मीजेनकाइम से, ठीक है ना. फ्रॉम द मीजेनकाइम देन वी मूव टूवर्ड द लिवर, देन वी मूव टूवर्ड द बोन मैरो ऑफ लॉन्ग एंड फ्लैट बोन, देन वी मूव टूवर्ड द बोन मैरो ऑफ एक्सियल skeleton. देख, there are two types of bone marrow now. Okay, one is inactive, one is active. That active bone marrow takes part in the erythropoiesis, that is our red bone marrow. Okay, inactive bone marrow is called yellow bone marrow. ठीक है ना. Active bone marrow is our red bone marrow, inactive bone marrow is yellow bone marrow. ठीक है, देख, they are inactive. This inactive bone marrow doesn't take participation in erythropoiesis. During severe hemolysis, during severe blood loss, these inactive bone marrow get activated. They become what? Red bone marrow. ठीक है, and they start erythropoiesis. ठीक, बोन मैरो का 75% बोन मैरो इज यूज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स. ठीक है, एंड 25% ऑफ रिमेनिंग बोन मैरो इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इराइथ्रोसाइट्स. और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, लेट्स सी द प्रोसेस ऑफ इराइथ्रोपोएसिस. ठीक है, अब अपन इसका प्रोसेस देखते हैं बेसिकली होता कैसे. ओके, पहले देयर आर स्टेम सेल्स. ठीक, देयर आर स्टेम सेल्स. These stem cells are called uncommitted pluripotent hematopoietic stem cell. ठीक है, uncommitted, it means they are not committed to form any particular type of cell. Pluripotent मतलब कि वो कुछ भी बन सकते हैं. They have pluripotency मतलब they can form different thing. Hematopoietic, it means they will form red blood cells. They form all kind of blood cells. Stem cells. ठीक है, we understand these stem cells which are involved in the process of hematopoiesis. ठीक है, they are called uncommitted pluripotent hematopoietic stem cell. ये अपन को समझ आया. ओके, now this uncommitted pluripotent hematopoietic stem cell is converted into committed pluripotent हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल. वेरी इजी. ठीक है, देख, पहले ये अनकमिटेड थे. ठीक है, इनके पास एक फीचर क्या था? दे वर प्लूरिपोटेंट. ठीक है, ठीक, फॉर एग्जाम्पल इट इज अ गाय. ठीक है, ये बंदा अभी किसी का नहीं है. ठीक है, ही इज प्लूरिपोटेंट एंड ही इज अनकमिटेड, फ्री फ्रॉम एनी रेस्ट्रिक्शन एंड ऑल. ओके, नाउ ही गॉट्स इनटू अ रिलेशनशिप. ठीक है, and he becomes committed. ठीक, he becomes committed but he is still pluripotent, मतलब he can function differently. ठीक है ना, he doesn't lose his feature of pluripotency. Now this committed pluripotent hematopoietic stem cell will give rise to two types of cell. ठीक है, फर्स्ट दो चीज़ों के लिए कमिटेड होगा. फॉर एग्जाम्पल दिस गाय देन गेट्स मैरिड. ओके, देन ही विल बी कमिटेड टू हिज वाइफ. ठीक है ना, ही विल बी कमिटेड टू हिज वाइफ एंड ही विल बी कमिटेड टू हिज चिल्ड्रंस. ठीक है, सो दिस कमिटेड प्लूरिपोटेंट हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल now they can form two types of they will divide into two type of stem cells because they have two responsibility. One of his wife and one of his child. Okay,
देख, दे विल फॉर्म इनटू कॉलोनी फॉर्मिंग या फिर लिम्फॉइड स्टेम सेल, ठीक है, एंड वन विल बी माइलॉइड स्टेम सेल, ठीक। सेल्स, लिम्फॉइड सेल्स बेसिकली क्या होता है हमारे नेचुरल किलर सेल्स, बी सेल्स एंड आवर टी सेल्स, ठीक। एंड व्हाट आर आवर माइलॉइड स्टेम सेल्स, ठीक है। बेसिकली माइलॉइड सेल्स क्या होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। देन दे विल फॉर्म आवर ग्रैन्युलोसाइट्स, मोनोसाइट, ठीक है, ग्रैन्युलोसाइट, मोनोसाइट एंड मेगा कैरियोसाइट, ठीक। नाउ इन दिस लेक्चर वी विल बी ओनली फोकस्ड अबाउट दिस कि अपन स्टेम सेल से वी गो टू uncommitted pluripotent hematopoietic cell, then we go to committed, then we move toward the myeloid, then from there myeloid to RBC. Okay, so let's see this feature in detail, ठीक है। अपन फिर से एक बार इस चार्ट को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, देयर वेर uncommitted pluripotent hematopoietic stem cells, they turned into committed pluripotent hematopoietic stem cells, okay। After being committed pluripotent hematopoietic stem cell, they have two responsible to form lymphoid cells and one to form myeloid cells, then they will be into myeloid stem cells, ठीक है। myeloid stem cells produces different kind of cells like RBC, eosinophils, basophil, neutrophil, okay। देख, they will convert into colony forming, as now we are dealing with RBC, so they will form colony forming erythrocytes. It means now these are converted to a cells which can form colony of erythrocytes, okay। देख, these colony forming erythrocytes will then form proerythroblast, then early normoblast, then they will form intermediate normoblast, then they will form late normoblast, then they will form erythrocyte, ठीक है। और erythrocyte के बाद they will form mature RBC, like this is the stage we have to go through, ठीक है। दिस, ये जो पूरा इराइथ्रोपोइसिस है ना, दिस होल प्रोसेस बेस्ड ऑन 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन, ठीक है। फर्स्ट, अभी जो चेंज है फ्रॉम द प्रो इराइथ्रोसाइट टू अवर आरबीसी, बेसिकली 4 चेंजेस आर नोटिस, ठीक है। इसी 4 चेंज में पूरा इराइथ्रोपोइसिस वी कैन अंडरस्टैंड। 1, देयर विल बी अ रिडक्शन ऑफ साइज ऑफ सेल, ठीक है। सेकेंड, there will be disappearance of nucleoli and nucleus, okay। Third, there will be appearance of hemoglobin, okay। And fourth one, there will be change in staining property, okay। So on the basis of these 4 characteristics, we will study the process of erythropoiesis, okay। So let's start dealing with our first stage, that is our proerythrocyte या फिर proerythroblast, ठीक है। देख, proerythroblast has a size of 20 microns, ठीक है, 20 microns, it means it has a size of 20 microns, ठीक। they are very large cell, ठीक, they are large, they have a basophilic
साइटो, ठीक है, दे हैव अ बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म, ठीक है। बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म का मतलब क्या हो गया, देयर साइटोप्लाज्म विल बी ब्लू इन कलर, है ना, देयर साइटोप्लाज्म विल बी ब्लू इन कलर, ठीक है। ये अपन ने ब्लू कलर का साइटोप्लाज्म भी बना दिया, ठीक। बेसोफिलिया इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द बेसोफिलिक नेचर ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। देख, दे हैव बेसोफिलिक इन नेचर, देर इज नो हेमोग्लोबिन प्रेजेंट इन दिस स्टेज, अपन को यहाँ पे कहीं हेमोग्लोबिन नहीं दिख रहा है। दे हैव मल्टीपल न्यूक्लियोलाई, दे हैव मल्टीपल न्यूक्लियोलाई, ठीक है। देख, मल्टीपल न्यूक्लियोलाई अगर अपन बनाए तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। और इस न्यूक्लियस में मल्टीपल न्यूक्लियोलाई है, मतलब 1 और 2, ठीक है। ये अपन को दिख गया, इसका मतलब फीचर्स क्या हो गए, दे आर वेरी लार्ज बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म। वही सारे जो फीचर्स है ना, 4 पॉइंट जो हमने पहले डिस्कस किए थे, उसी 4 पॉइंट्स पे अपन पूरा स्टेजेस को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। देख, लार्ज सेल बेसोफिलिक, दे हैव मल्टीपल न्यूक्लियाई, है ना, मल्टीपल न्यूक्लियोलाई, ठीक है। हेमोग्लोबिन है, नो हेमोग्लोबिन, ओके। So now let's move on to the early normoblast. Early normoblast, ठीक है। देख, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट के स्टेजेस देखते हैं कि अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में क्या हो रहा होता है, ठीक है। अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में द साइज रिड्यूसेस टू 15 माइक्रोन, ठीक है। इसका मतलब हम जब इस स्टेज से नेक्स्ट स्टेज पर बनाएंगे तो सेल का साइज थोड़ा रिड्यूस कर देंगे, है ना। सेल अपन ने क्या कर दिया, रिड्यूस, ठीक है। इट हैज़ अ वेरी कंडेंस्ड न्यूक्लियस, ठीक है, कंडेंस्ड न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म अभी भी बेसोफिलिक है, ठीक, बट द न्यूक्लियस कंडेंस्ड एंड द साइज इज लेस, स्टिल देयर इज वेरी लाइक नो हेमोग्लोबिन प्रेजेंट, ठीक। ले चल, इस फीचर्स को अपन अभी अभी यहाँ पे देखते हैं। 15 माइक्रोन साइज हमने कम कर दिया है। बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म मतलब ब्लू इन कलर होगा, ठीक। स्टेनिंग प्रॉपर्टी है ये इसकी। एंड नाउ अब यहाँ पे क्या होगा, जो न्यूक्लियस इतना बड़ा था, इट विल स्टार्ट कंडेंसिंग। यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियस विल स्टार्ट कंडेंस्ड न्यूक्लियस होगा, ठीक है ना। इट हैज़ condensed nucleus, 15 micrometer in size, basophilic cytoplasm, and no hemoglobin can be seen in the early normoblast, ठीक है। Okay, now let's move on to the next stage, that is our intermediate normoblast, ठीक है। ये देख, that is our intermediate normoblast, okay. Now what happens in the intermediate normoblast, ठीक है। intermediate normoblast में क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हो रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले यहाँ पे हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। HB फॉर्मेशन स्टार्ट्स, ठीक है। HB फॉर्मेशन क्या होता है, यहाँ पे स्टार्ट होता है, ओके। अब समझ ले, यहाँ पे HB का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है, ठीक है। इसका मतलब थोड़ा थोड़ा हेमोग्लोबिन बनना शुरू हुआ है। इसका मतलब थोड़ा सा क्या होगा, इओजिनोफिलिक नेचर भी आ रहा होगा, लिटिल इओजिनोफिलिक नेचर भी आ रहा होगा, बट स्टिल देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ बेसोफिलिक नेचर ऑल्सो, है ना। देख ये जो लिटिल बिट इओजिनोफिलिक नेचर एंड बेसोफिलिक नेचर जो होता है ना, इस फीचर को अपन कहते हैं पॉलीक्रोमैटिक स्टेनिंग, ठीक है। कि थोड़ा सा अब क्या है, थोड़ा सा ब्लूइश होगा, थोड़ा सा रेडिश होगा, ठीक है ना, ओके। दिस साइज ऑफ द इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट
reduces to 10 to 12 माइक्रोन. ओके, और इस स्टेज में क्या होता है? इस स्टेज में वी कैन नोटिस ब्लूइश पिंक कलर. पिंक कलर बिकॉज ऑफ लिटिल हेमोग्लोबिन that is started formed, है ना, इसका फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है. ओके, देख अभी इस स्टेज से वी मूव टू दिस स्टेज. ठीक है, अभी क्या यहाँ पे क्या है, 15 माइक्रोमीटर से 10 to 12 माइक्रोन तक रिड्यूस हो गया है. तो वी विल ड्रॉ थोड़ा सा और स्मॉल. ठीक है, यहाँ पे हेमोग्लोबिन जो है थोड़ा थोड़ा फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है. इसका मतलब अपन थोड़ा सा ब्लू करेंगे एंड लिटिल बिट ऑफ रेड. ठीक है ना, बिकॉज इट हैज़ अ पॉलीक्रोमैटिक नेचर. ठीक है, ओके. न्यूक्लियस इज कंडेंस. यहाँ पे देख कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियस विल अकर. ठीक है, ये तो शुरुआत से होता जाएगा. ओके, सो दिस वाज द फीचर कि हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, दिस ब्लूइश पिंक नेचर आया. ओके, पॉलीक्रोमैटिक स्टेनिंग हुई, साइज 15 माइक्रोन से 10 to 12 माइक्रोन तक कन्वर्ट हो गया. 15 से 12 माइक्रोन तक, और ये क्या हुआ, 15 माइक्रोमीटर से 10 to 12 माइक्रोन तक रिड्यूस हो गया. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लेट नॉर्मोब्लास्टिक स्टेज. ओके, नाउ लेट्स चेक कि लेट नॉर्मोब्लास्ट में क्या होता है. ठीक है, यहाँ पे हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस इंक्रीज होती है. ठीक है, साइज रिड्यूसेस टू 10 to 8 माइक्रोन. ठीक है, यहाँ पे यूजोनोफिलिक नेचर है ना, यहाँ पे यूजोनोफिलिक नेचर जो है ये कंप्लीटली आ जाता है ना. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज विथ न्यूक्लियस. यहाँ पे न्यूक्लियस के साथ क्या होता है, न्यूक्लियस स्टार्ट्स डिसअपियरिंग. ठीक है, और वो बिल्कुल छोटा बन जाता है. ठीक है, एंड डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड पिक्नोसिस. यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस एकदम इंक स्पॉट. ठीक, इंक स्पॉट न्यूक्लियस हो जाता है. ओके, सो लेट्स ड्रॉ दीज फीचर्स. ठीक है, 8 to 10 माइक्रोन का हमारा सेल, हीमोग्लोबिन है, इसका मतलब यूजोनोफिलिक इन नेचर होगा, इसका मतलब रेड कलर. ठीक है, न्यूक्लियस इंक स्पॉट मतलब वेरी स्मॉल. ओके, दिस वाज द फीचर अबाउट. देख इंक स्पॉट इंपॉर्टेंट है, पिक्नोसिस इज इंपॉर्टेंट. यूजोनोफिलिक यहाँ पे कंप्लीटली आ जाता है, पिक्नोसिस की वजह से इंक स्पॉट न्यूक्लियस बन जाता है. ओके, हेमोग्लोबिन का सिंथेसिस इंक्रीज होता है यहाँ पे. ओके, okay, so let's come to the second last stage, that is our रेटिक्यूलोसाइट. देख रेटिकुलोसाइट में बेसिकली रेटिकुलोसाइट स्टेज को अपन इमेच्योर आरबीसी भी कहते हैं. ओके, इसे अपन इमेच्योर आरबीसी भी कहते हैं. ओके, रेटिकुलोसाइट मतलब यहाँ पे एक रेटिकुलर नेटवर्क प्रेजेंट होता है. ठीक है, रेटिकुलर नेटवर्क इज प्रेजेंट. This reticular network is formed because of disintegrated cell organelles. ठीक है, ओके. यहाँ पे साइज बिकम्स अराउंड 8 माइक्रोन. ठीक है, यहाँ पे अराउंड 8 माइक्रोन बन जाता है साइज. यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इट बिकम्स बेजोफिलिक अगेन इन नेचर. ठीक है, नाउ विल आस्क यू कि व्हाई बेजोफिलिक, क्योंकि अभी तो हेमोग्लोबिन का सिंथेसिस भी बहुत अच्छा हो गया था, अभी स्टार्ट भी हो गई थी. बेजोफिलिक क्यों हुआ? फर्स्ट आई टोल्ड यू कि सेल ऑर्गेनेल्स आर यूजोनोफिलिक नेचर, और यहाँ पे रेटिकुलोसाइट में क्या हो रहा है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल. दिस डिसइंटीग्रेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स लाइक गोल्गी एपारेटस, माइटोकॉन्ड्रिया गिव्स अ बेजोफिलिक साइटोप्लाज्मिक नेचर. ठीक है, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज यहाँ पे न्यूक्लियस क्या होता है, एकदम डिसअपियर. देख इसके पहले वाले स्टेज में क्या होता है, पिक्नोसिस की वजह से न्यूक्लियस बिकेम
इंक स्पॉट, मतलब एकदम इंक स्पॉट की तरह बन गया था थोड़ा सा। यहाँ पे क्या हो गया, न्यूक्लियस प्रॉपरली डिसअपियर हो गया। ओके देख, दिस रेटिकुलोसाइट्स, देख अभी ये जो इराइथ्रोपोइसिस हो रहा था ये बोन मैरो में हो रहा था, है ना। अभी बोन मैरो से नाउ दे विल इजेक्ट, रेटिकुलोसाइट बोन मैरो से ब्लड सर्कुलेशन में आ जाएगा, ठीक है। ओके, बोन मैरो से ब्लड सर्कुलेशन में जो निकलने का जो प्रोसेस है ना, इसे अपन कहते हैं डायापेडेसिस, ठीक है। देख, डायापेडेसिस इज द सेम प्रोसेस बाय विच आवर न्यूट्रोफिल, मतलब बेसिकली वाइट ब्लड सेल्स इनफिल्ट्रेट थ्रू आवर ब्लड सर्कुलेशन टू द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन और समथिंग, ठीक है। डायापेडेसिस के प्रोसेस से बोन मैरो से ब्लड सर्कुलेशन में आ जाएगा हमारा रेटिकुलोसाइट। और डायपेटिसिस से एक और चीज़ होती है जनरल फीचर, दैट इज जो WBCs होते हैं ना, ये बेसिकली साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन में आते हैं, ठीक है। देख, बोन मैरो से ब्लड सर्कुलेशन में आने को डायपेटिसिस क्या, किसके, रेटिकुलोसाइट को। ओके, और WBC ब्लड सर्कुलेशन जब साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन में जाता है, इस प्रोसेस को भी अपन डायपेडेसिस भी कहते हैं। ओके, लेट्स ड्रॉ इट, ठीक है। देख, 8 माइक्रोन्स मीन्स लाइक दिस, ठीक है ना। सेल ऑलमोस्ट बाइकनकेव इन नेचर बन गया होगा, ठीक। यहाँ पे बेसिकली अ स्लाइट यूजिनोफिलिक नेचर भी आया है ड्यू टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ सेल, देयर इज नो न्यूक्लियस प्रेजेंट, सो दिस इज आवर रेटिकुलोसाइट। ओके, now this reticulocyte is converted into our mature RBC. Okay, mature RBC is of 7.2 माइक्रोन। यहाँ पे प्रॉपर यूजिनोफिलिक नेचर होता है, ठीक है, यूजिनोफिलिक नेचर होता है, ठीक है। न्यूक्लियस डिसअपियर होता है, रेटिकुलर नेटवर्क जो फॉर्म हुआ था ना रेटिकुलोसाइट में, ये भी डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। बेसिकली द फीचर्स ऑफ RBC नाउ इज एस्टैब्लिश्ड। ओके, फॉर एग्जाम्पल अभी अगर अपन थोड़े से क्वेश्चनिंग करें कि टेल मी, अच्छा हाउ विल यू नो कि कौन सा सेल किस स्टेज में है। फॉर एग्जाम्पल यू सी अ सेल विथ हैविंग पॉलीक्रोमैटिक स्टेनिंग, कि मतलब थोड़ा सा यूजिनोफिलिक स्टेनिंग भी कर रहा है और बेजोफिलिक स्टेनिंग भी कर रहा है, तो इसका मतलब ये भी कौन से स्टेज में, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट स्टेज में। देख, कोई सेल है जो जिसमें तुमको कोई न्यूक्लियस नहीं दिख रहा है बट स्टिल तुमको यूजिनोफिलिक इन नेचर दिख रहा है, सॉरी बेजोफिलिक इन नेचर दिख रहा है, तो उसका मतलब ये होगा कौन सा, रेटिकुलोसाइट स्टेज में है ये वाला सेल, है ना। ओके, फॉर एग्जाम्पल वन मोर क्वेश्चन इज, फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी मल्टी न्यूक्लिएटेड बेजोफिलिक साइटोप्लाज्म, तो ये कौन से सेल पे होगा, और सेल का साइज भी लार्ज है, तो इसका मतलब दिस सेल इज इन स्टेज ऑफ प्रोइराथ्रोब्लास्ट स्टेज। Okay, so I hope you guys understand the process of erythropoiesis. You just watch this video again, revise it, ठीक है। ये जो सेल के अपन ने डायग्राम्स बनाए हैं, इस डायग्राम को बनाओ एंड देन यू विल अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस वेरी इजीली, ठीक है। ओके, सो थैंक यू गाइज, इफ यू लाइक द वीडियो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड गिव्स अ थम्स अप टू द वीडियो।